सीधे लिए चलते हैं हैदराबाद हाउस, जहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात के बाद दोनों प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। In the field of environment to be exchanged by Mrs. Brune Poisson, Minister of State attached to the Minister for Ecological and Inclusive Transition, and Dr. Mahesh Sharma, Minister of State for Environment, Forest and Climate Change. Eighth, agreement on cooperation in the field of urban development to be exchanged by Mrs. Brune Poisson, Minister of State, and Shri Hardeep Singh Puri, Minister of State for Housing and Urban Affairs. Ninth, agreement on the exchange and reciprocal protection of classified or protected information to be exchanged by Mr. Philippe Etienne, Diplomatic Advisor to the French President, and Shri Ajit Doval, National Security Advisor. Tenth, implementing arrangement between the Centre National d'Etudes Spéciales and the Indian Space Research Organisation for pre-formulation studies of a maritime awareness mission to be exchanged by Mr. Jean-Yves Le Gall, President CNES, and Dr. K. Sivan, Secretary, Department of Space and Chairman ISRO. Eleventh, industrial way forward agreement between the Nuclear Power Corporation of India and EDF France to be exchanged by Mr. Jean-Bernard Lévy, CEO EDF, and Dr. Shekhar Basu, Secretary, Department of Atomic Energy. 12th, bilateral arrangement between the Government of India and the Service Hydrographique de la Marine on marine hydrography and cartography to be exchanged by the Ambassador of France to India, His Excellency Mr. Alexander Ziegler, and Shri Vinay Mohan Kwatra, Indian Ambassador to France. Thirteenth, credit facility agreement between Department of Economic Affairs and AFD France for 100 million euros for the Smart Cities Mission Support Program to be exchanged by Mr. Remy Royu, Director of French Development Agency and Ambassador of India to France, Shri Vinay Mohan Kwatra. The final document, 14th, MOU between National Institute of Solar Energy and INES-CA France to be exchanged by Mr. Daniel Ververte, Administrator, the Commission for Atomic and Alternate Energy of France, and Ambassador of India to France, Shri Vinay Mohan Kwatra. Excellencies, this concludes the exchange of agreements ceremony. I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the proceedings. आज तक पंचतंत्र की कहानियों के जरिए वेद, उपनिषद, महाकाव्यों, श्री रामकृष्ण और श्री अरविंद जैसे महापुरुषों के जरिए फ्रांसीसी विचारकों ने भारत की आत्मा में झोंक करके देखा है। वॉल्टेयर, विक्टर ह्यूगो, रोमन रोला, रेने दोमाल आत्मा में झोंक करके देखा है। वॉल्टेयर, विक्टर ह्यूगो, रोमन रोला, रेने दोमाल, आंद्रे मालरो,
जैसे असंख्य युग प्रवर्तकों ने भारत के दर्शन में अपनी विचारधाराओं का पूरक और प्रेरक पाया है। राष्ट्रपति जी, आज हमारी यह मुलाकात सिर्फ दो देशों के नेताओं की मुलाकात ही नहीं, दो समान विचार वाली सभ्यताओं और उनकी समग्र धरोहर का समागम है, संगम है। यह संयोग मात्र नहीं है कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की गूंज फ्रांस में ही नहीं, भारत के संविधान में भी दर्ज है। हमारे दोनों देशों के समाज इन मूल्यों की नींव पर खड़े हैं। इन मूल्यों के लिए हमारे वीर सेनानियों ने 2 विश्व युद्धों में अपनी कुर्बानियां दी हैं। फ्रेंड्स, फ्रांस और भारत की एक मंच पर उपस्थिति एक समावेशी, खुले, समृद्ध व शांतिमय विश्व के लिए एक सुनहरा संकेत है। हमारे दोनों देशों की स्वायत्त और स्वतंत्र विदेश नीतियां सिर्फ अपने अपने हित पर ही नहीं, अपने देशवासियों के हित पर ही नहीं, बल्कि सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों को सहेजने पर भी केंद्रित है। और आज वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए यदि कोई 2 देश कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं तो वो है भारत और फ्रांस। राष्ट्रपति जी, आपके नेतृत्व ने यह जिम्मेदारी आसान कर दी है। जब 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का लॉन्च हुआ था तो पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति जी के साथ हुआ था। कल इंटरनेशनल सोलर अलायंस फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस का आयोजन साझा जिम्मेदारियों के प्रति हमारी कार्यशील जागरूकता का ज्वलंत उदाहरण है। मुझे खुशी है कि यह शुभ कार्य फ्रांस के राष्ट्रपति जी के साथ ही हो रहा है। फ्रेंड्स, रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष और हाई टेक्नोलॉजी में भारत और फ्रांस के द्विपक्षीय सहयोग का इतिहास बहुत ही लंबा है। दोनों देशों में द्विपक्षीय संबंधों के बारे में बायपार्टीजन सहमति है। सरकार किसी भी की हो, हमारे संबंधों का गाफ सिर्फ और सिर्फ ऊंचा ही जाता है। आज की हमारी बातचीत में जो निर्णय लिए गए उनका एक परिचय आपको अभी हुए समझौतों में मिल गया है और इसलिए मैं सिर्फ 3 स्पेसिफिक विषयों पर अपने विचार रखना चाहूंगा। पहला, रक्षा क्षेत्र में हमारे संबंध बहुत ही गहन है और हम फ्रांस के सबसे विश्वस्त रक्षा साझेदारों में एक मानते हैं। हमारी सेनाओं के सभी अंगों के बीच विचार विमर्श और युद्ध अभ्यासों का नियमित रूप से आयोजन होता है। रक्षा उपकरणों और उत्पादन में हमारे संबंध मजबूत है। रक्षा क्षेत्र में फ्रांस द्वारा मेक इन इंडिया के कमिटमेंट का हम स्वागत करते हैं। आज हमारी सेनाओं के बीच रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट के समझौते को मैं हमारी घनिष्ठ रक्षा सहयोग के इतिहास में एक स्वर्णिम कदम मानता हूं। दूसरा, हम दोनों का मानना है कि भविष्य में विश्व में सुख, शांति और प्रगति और समृद्धि के लिए इंडियन ओशन क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। चाहे पर्यावरण हो, चाहे सामुद्रिक सुरक्षा या सामुद्रिक संसाधन या फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइंग, इन सभी विषयों पर हम अपना सहयोग मजबूत करने के लिए
प्रतिबद्ध है और इसलिए आज हम इंडियन ओशन क्षेत्र में अपने सहयोग के लिए एक जॉइंट स्ट्रेटेजिक विजन जारी कर रहे हैं। और तीसरा, हम मानते हैं कि हमारे द्विपक्षीय संबंधों के उज्जवल भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण आयाम है हमारे पीपल टू पीपल संबंध, विशेष रूप से हमारे युवाओं के बीच। हम चाहते हैं कि हमारे युवा एक दूसरे के देश को जाने, एक दूसरे के देश को देखें, समझें, वहां रहें, वहां काम करें, ताकि हमारे संबंधों के लिए हजारों एम्बेसडर्स तैयार हो। और इसलिए आज हमने 2 महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। एक समझौता एक दूसरे की शिक्षा योग्यताओं को मान्यता देने का और दूसरा हमारी माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप का है। ये दोनों समझौते हमारे देशवासियों के, हमारे युवाओं के बीच करीबी संबंधों का फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे संबंधों के अन्य कई आयाम है, सभी का उल्लेख करूंगा तो शायद शाम हो जाएगी। रेलवे, शहरी विकास, पर्यावरण, सुरक्षा, अंतरिक्ष, यानी जमीन से आसमान तक ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर हम साथ मिलकर के काम न कर रहे हों। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी हम सहयोग और समन्वय के साथ काम करते हैं। अफ्रीकी देशों से भारत और फ्रांस के मजबूत संबंध रहे हैं। ये हमारे सहयोग का एक और आयाम विकसित करने का मजबूत आधार प्रदान करता है। कल इंटरनेशनल सोलर अलायंस की फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस की सह अध्यक्षता राष्ट्रपति मैक्रो और मैं करेंगे। हमारे साथ कई अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष और मंत्रीगण भी उपस्थित होंगे। प्लेनेट अर्थ के भविष्य की खातिर हम सभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की सफलता के लिए प्रतिबद्ध हैं। राष्ट्रपति जी, मुझे आशा है कि परसों वाराणसी में आपको भारत की उस प्राचीन और साथ ही चिर नवीन आत्मा का अनुभव होगा जिसकी तरलता ने भारत की सभ्यता को सींचा है और जिसने फ्रांस के अनेक विचारकों, साहित्यकारों और कलाकारों को भी प्रेरित किया है। आने वाले 2 दिनों में राष्ट्रपति मैक्रो और मैं विचारों का आदान प्रदान जारी रखेंगे। मैं एक बार फिर राष्ट्रपति मैक्रो का, उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। यह वो रेमर्सी। Thank you, sir. May I now request the Honorable President of France to deliver his remarks to the media. Namaste. Thank you very much, Mr. Prime Minister. Monsieur le Premier ministre, cher ami, merci beaucoup pour ces mots, vos engagements et merci pour votre accueil. La visite d'État que nous effectuons avec l'ensemble de ma délégation est un engagement que nous avions pris ensemble au mois de juin dernier, vous l'avez rappelé, lorsque vous avez rendu visite à la France. Et vous venez parfaitement de rappeler la force des liens historiques qui nous unissent. Vous avez rappelé la présence de nombreux écrivains français et l'inspiration qu'ils ont tirée dans votre pays. Je veux dire ici que des générations de traducteurs au XVIIIe et au début du XIXe siècle se sont épuisés à essayer de traduire le Mahabharata, achevant ce travail totalement du sanskrit au français.